महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ एक ऐतिहासिक जीत मिली है। इस कामयाबी के उपलक्ष्य में आज जोधपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पटाखे फोड़कर जश्न मनाया गया, तो एक दूसरे का मुंह भी मीठा कराया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। बटेंगे तो कटेंगे की भावना को समझते हुए देशवासियों ने धर्मनिरपेक्षता के और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में दिया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी के अथक प्रयासों से और कार्यकर्ताओं ने जो जमीनी स्तर पर कार्य किया, इसी का ही परिणाम है कि भाजपा महाराष्ट्र में एक 3/4 बहुमत से भी ज्यादा बहुमत ला करके और महाराष्ट्र के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कामों पर एक बार पुनः अपनी मोहर लगाई है और मैं समझता हूं देश के विकास में यह मील का पत्थर साबित होगा। क्या तो राजस्थान के बाई इलेक्शन में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है। भारतीय जनता पार्टी ने 7 में से 5 सीटें जीतते हुए एक भगवा परचम फहराया है और मैं समझता हूं कि यह राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी के पिछले 1 वर्ष के कार्यकाल के ऊपर मोहर लगाई है और जो कार्य उन्होंने पिछले 1 वर्ष में आम जन के हितार्थ किए हैं, चाहे वो गैस सिलेंडर के रेटें कम करना हो और चाहे महिलाओं को सुविधाएं प्रदान करना हो और चाहे और भी तरह के जो भी कार्य भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने किए हैं, उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को आज राजस्थान में भी 7 में से 5 सीटों पर विजय हासिल हुई। जोधपुर में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जोधपुर दौरे के दौरान एम्स के 64वें दीक्षांत समारोह में आज भाग लिया। इस समारोह एम्स अस्पताल के ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया था। Let us look around our Bharat at the moment. In global perspective, there has been exponential economic upsurge. My generation never dreamt of it, never conceived it, never thought it was possible. But we are having exponential economic upsurge and phenomenal infrastructure growth in last few years. This has made Bharat, who once was part of fragile 5 economies, as big 5 global economies, on way to becoming 3rd largest global economy, ahead of Japan and Germany, in next year or 2. And this has generated an atmosphere of hope and possibility in the country. Our aspirations have taken wings, and we have, in togetherness, chalked out a program that our Bharat will be a developed Bharat 2047. But friends, this aspirational object, very ambitious, requires 8-fold increase in our per capita income. And this takes me to something which is of your interest. This is attainable only with our population being healthy and fit. One may be committed, sincere, earnest, gifted. We welcome our chief guest, Honorable Shri Jagdeep Dhanakhar ji, Vice President of India. Dr. Srimati Sudesh Dhanakhar ji, spouse of the Honorable Vice President. I request Dr. Shiv K. Sareen, President NAMS, to felicitate spouse of the Honorable. Let us look around our Bharat at the moment. In global perspective, there has been exponential economic upsurge. My generation never dreamt of it, never conceived it, never thought it was possible. But we are having exponential economic upsurge and phenomenal infrastructure growth in last few years.
This has made Bharat, who once was part of fragile 5 economies, as big 5 global economies, on way to becoming third largest global economy, ahead of Japan and Germany in next year or two. And this has generated an atmosphere of hope and possibility in the country. Our aspirations have taken wings, and we have, in togetherness, chalked out a program that our Bharat will be a developed Bharat at 2047. But friends, this aspirational object, very ambitious, requires 8-fold increase in our per capita income. And this takes me to something which is of your interest. This is attainable only with our population being healthy and fit. One may be committed, sincere, earnest, gifted. रिटायर्ड एडिशनल एसपी चंदन सिंह के घर पर लूट की वारदात से जुड़े मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में आरोपियों को गिरफ्तार करने में एक सफलता मिली। डीसीपी आलोक श्रीवास्तव और एडीसीपी वीरेंद्र सिंह के अलावा शिवलाल मीणा लगातार करते रहे कोऑर्डिनेशन। नशीला पदार्थ पिलाने में काजल, राज और राजन की भूमिका सामने आई है। यह वारदात बीजेएस गली नंबर 12 में घटित हुई थी, जिसकी महामंदिर पुलिस थाना टीम जांच कर रही है। सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी की पुत्रवधू को बेहोश कर जेवर लूटे तो 5 घंटे में ही पुलिस ने 8 अपराधियों को किया गिरफ्तार। सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंदन सिंह महेचा के मकान में नेपाल के नौकरों ने जहर खुरानी कर पहले पुत्रवधू को बेहोश किया, फिर दिन दहाड़े लाखों रुपए के सोनों के जेवर लूट लिए। पूर्व पुलिस अधिकारी के घर हुई इस वारदात से समूचे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हालांकि सीसीटीवी फुटेज और नेपाल के स्थानिक लोगों की मदद से तलाश कर पुलिस ने 5-6 घंटे में ही बिलाड़ा व ब्याबर से नौकरानी सहित 8 जनों को हिरासत में ले लिया। नशीले पदार्थ में बेहोश पुत्रवधू को महात्मा गांधी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। नशीले पदार्थ की शिकार हुई पुत्रवधू अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। रिटायर्ड एडिशनल एसपी चंदन सिंह ने पुलिस का जताया आभार। कहा, जोधपुर की एक्टिव पुलिसिंग ने दिया है अपनी दक्ष और कुशल कार्यशैली का परिचय। लगभग 12:30-1 बजे लगभग टेलीफोन सूचना मिली थी कि विजेश में गली नंबर 9 के अंदर हमारे रिटायर्ड एडिशनल एसपी साहब चंदन सिंह जी, उनके घर पर कोई जहर खुरानी की वारदात हुई है। तुरंत मौके पर हम पहुंचे। एडिशनल एसपी साहब हमारे वीरेंद्र सिंह जी, एसीपी साहब अमित साहब भी मौके पहुंचे। जाके देखा कि वहाँ जो एडिशनल एसपी साहब उनकी पुत्रवधू के साथ उसके जो घरेलू नौकर थे, एक महिला और पुरुष जो नेपाल के रहने वाले थे, उनके द्वारा उनको जहर देके और उनके घर में लूट डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिस पर आस पड़ोसियों द्वारा जो पीड़िता थी उसको हॉस्पिटल भिजवाया गया था और हमारे वहाँ गहनता से जांच पड़ताल की। आस पड़ोसी जो नेपाली नौकर है उनसे पूछताछ की गई। उनके जो उसके नौकर थे जो जिनके द्वारा वारदात अंजाम दिया गया, उनके तुरंत हमने फोटो, मोबाइल नंबर लेके तकनीकी रूप से अनुसंधान शुरू किया। हमारी टीम अलग अलग बना के हमने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जहाँ भी उनकी संभावना थी वहाँ पर हमने टीमें रवाना की। मैं खुद मेरी टीम के साथ 2 टीमें हमने बनाई और हम इधर ब्यावर बिलाड़ा की तरफ रवाना हुए। वहाँ पर हमने ब्यावर पुलिस और बिलाड़ा पुलिस के सहयोग से कुल 8 आरोपियों को डिटेन किया, जिसमें 2 मुख्य जिसके घर के नौकर हैं वो भी डिटेन हुए हैं और इनको हम डिटेन करके लेके आए हैं। इनसे वारदात के संबंध में गहनता से अनुसंधान जारी है। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के एक मकान में हुई चोरी, सोने चांदी और नकदी पर किया हाथ साफ, पुलिस पहुंची मौके पर। जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के 17/744 मकान में चोरी का मामला गुरुवार शाम 4 बजे सामने आया। सूचना के बाद चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर अज्ञात चोरों की तलाश में जुट गई थी। मकान में रहने वाले कोमल जोशी ने बताया कि मेरे पति ऑफिशियल कार के लिए टूर पर गए हुए थे, मैं अपने पियर गई थी, मकान लॉक किया हुआ था। जब शाम 4 बजे गुरुवार को
घर आए तो गेट का ताला टूटा हुआ मिला और कमरे के सामान अस्त व्यस्त मिले। कोमल जोशी के पिता अरुण व्यास ने बताया कि अज्ञात चोर ने कमरे में रखी अलमारी तोड़कर उसमें सोने चांदी के साथ नकद रुपए चुरा लिए। हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मकाम मुआयना के साथ आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज भी देख रही है ताकि अज्ञात चोर जल्द से जल्द पकड़े जा सके। मेरा नाम अरुण व्यास है। ये मकान मेरी बच्ची रहती है यहाँ पे कोमल, जिसके पति टूर में गए हुए MP। तो अक्सर क्या है कि जब ये टूर में जाते हैं बच्ची हमारे घर में आ जाती है। मैं कमला नंबर में रहता हूँ, 17/744 में मकान है। तो आज जब ये 4 बजे बच्ची आई तो ताले टूटे हुए दिखे। अंदर आके देखा तो लाइटें लग रही थी, दरवाजे सारे खुले थे, कमरा पूरा अस्त व्यस्त था। कुछ चांदी की जोड़ियाँ हैं, चांदी पैरों के पायल की जोड़ियाँ हैं, बच्ची के सोने की बाली है, चांदी की गिलास है, कुछ सिक्के भी है चांदी के। इस तरह उसने चोरी करके सारा कमरा तहस नहस कर दिया है। हमने पुलिस थाना में रिपोर्ट की, पुलिस वाले आए यहाँ पे, मुको मुआयना करके गए। अब देखते क्या होता है। क्या किसको आपकी शक सुबह है आप पर किसी के? अब मकान बंद है, कह नहीं सकते। कुछ सीसीटीवी फुटेज में कुछ आया है? वो अब देखने को पता चलेगा। क्यूसर में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में भाजपा के विजयी प्रत्याशी रेवत राम डांगा ने जीत का एक विशेष जश्न मनाया। ज्ञात हो, राजस्थान बाई इलेक्शन में श्री डांगा ने RLP की कनिका बेनीवाल को 13,904 मतों की लीड से हराया। डांगा को 1,08,628 वोट मिले। बालोतरा क्षेत्र में गुजरने वाले जामनगर अमृतसर हाईवे पर देर रात को कल्याणपुर थाना क्षेत्र में परिवहन विभाग के उड़न दस्ते की चेकिंग के दौरान एक हादसा हो गया। एक खड़े ट्रक ने पीछे से तेज रफ्तार टैंकर घुस गया। तेज रफ्तार टैंकर की टक्कर से खड़े ट्रक के नीचे दबने से परिवहन विभाग के उड़न दस्ते के चालक की मौत हो गई और टैंकर चालक घायल हो गया। सूचना पर कल्याणपुर व पचपदरा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मौके से हटाकर कल्याणपुर CHC में रखवाया गया है। पुलिस ने हाईवे से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर जाम खुलवाया। साइबर क्राइम से सावधान रहें, सतर्क रहें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों से बचने की अपील की है। यह धोखाधड़ी खासकर बुजुर्गों को निशाना बनाती है, इसके लिए इन बातों का ध्यान जरूर रखना है। किसी भी संदिग्ध लिंक, कॉल या मैसेज पर भरोसा ना करें। अपनी निजी जानकारी हमेशा सुरक्षित रखें। सहायता के लिए साइबर हेल्पलाइन 131930 या cybercrime.government.in पर रिपोर्ट करें। सबूत सुरक्षित अवश्य रखें। अहमदाबाद के राजीव लोगों को डिजिटल अरेस्ट के खतरे से आगाह करते हैं। मैंने मन की बात के पिछले एपिसोड में डिजिटल अरेस्ट की चर्चा की थी। इस तरह के अपराध के सबसे ज्यादा शिकार बुजुर्ग ही बनते हैं। ऐसे में हमारा दायित्व है कि हम उन्हें जागरूक बनाएं और साइबर फ्रॉड से बचने में मदद करें। हमें बार बार लोगों को समझाना होगा कि डिजिटल अरेस्ट नाम का सरकार में कोई भी प्रावधान नहीं है। ये सरासर झूठ, लोगों को फंसाने का एक षड्यंत्र है। मुझे खुशी है कि हमारे युवा साथी इस काम में पूरी संवेदनशीलता से हिस्सा ले रहे हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। Available on Google Play and App Store. Download it now.